Good morning, students. Let's do the short question answers of chapter Force, Energy and Simple Machines. First is what is force? A push or pull acting on an object like draw को खोलने के लिए आप उसे pull करते हो, बंद करने के लिए push करते हो, तो this push or pull is called force. What is energy? Ability to do work, काम करने की क्षमता. What are machines? Devices which make our work easier. वो devices जो हमारा काम आसान करती हैं. And what are the main types of force? 6 types. First is gravitational force, force exerted by the earth. Second, electrostatic force, force exerted by a charged body. जैसे आपने प्लास्टिक कोम को चार्ज किया था अपने ड्राई हेयर के साथ रब करके. ओके. And third, magnetic force, force exerted by magnet. Fourth is mechanical force, force due to the direct contact with an object. Like draw को खोलने के लिए आपको उसके हैंडल को पकड़ना पड़ता है. ओके, सो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट के साथ. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स. एंड फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दैट अपोजेस देयर मोशन. उनकी मोशन को अपोज करता है, रोकता है. अ मूविंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दिस फोर्स. And next, buoyant force, when an object is placed in water, तो water उसके ऊपर force exert करता है in the upward direction, उसे हम कहते हैं buoyant force. Next, what is friction? अभी हमने discuss किया the force between two surfaces that opposes their motion, उनकी गति को रोकता है, that is called force of friction. Next, what changes can a force bring on an object? It can make a stationary object move. Like a ball rest पे है, आप उसको move कर सकते हो by kicking it, by applying force. It can increase the speed of a moving object. Like ball already motion में है, तो आप same direction में force लगा के उसकी speed को increase कर सकते हो, बढ़ा सकते हो. It can change the direction of a moving object, like टेनिस प्लेयर करते हैं और बैट्समैन भी करते हैं. वो बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं by applying force. It can change the shape and size of an object, like आप क्ले के टॉयज बनाते हो, आप उनकी शेप और साइज चेंज कर देते हो. Now, what is the use of friction in our daily life? It is important. We cannot walk without friction. लाइक आइस पे चलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. ओके, हमारे जो शूज हैं उनके नीचे सोल्स के ग्रूव्स बनाते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट कि हमारी ग्रिप बन जाए ऑन द ग्राउंड. सेकेंड, वी कैन नॉट रब ऑफ द मिस्टेक्स विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल इरेजर. हम मिस्टेक्स को जो पेंसिल से लिखा गया गलत उसको इरेज नहीं कर सकते if there is no friction. And we cannot write without friction. We cannot write on the chalkboard or on the paper without friction. Sometimes oil गिर जाता है ना पेपर पे, तो हमारी पेंसिल और पेन स्लिप कर जाता है. We cannot write on it. And we cannot stop a moving car. Moving car के टायर्स और ब्रेक्स की फ्रिक्शन के कारण ही हम व्हीकल्स को रोक पाते हैं. State different kinds of energy and their uses. First is mechanical energy. It helps to rotate turbines to produce electricity. Like falling water की एनर्जी यूज करके टर्बाइंस रोटेट करते हैं हाइडल पावर स्टेशंस पे, और these turbines help to produce electricity. हीट एनर्जी, लाइक एलपीजी बर्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो खाना बनाते हैं. नेक्स्ट, लाइट एनर्जी. इट हेल्प्स टू सी द थिंग्स अराउंड अस. लाइक अंधेरा या बल्ब ऑन करते हो तो
लाइट के कारण आप सब ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो विच आर अराउंड यू. And electric energy, it is used to run various electric appliances like TV चलाते हैं, electric geyser. ओके, सभी मशीन्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. सोलर एनर्जी, ओके, सनलाइट में बैठते तो हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, और सोलर पैनल यूज करके हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं. What is an inclined plane? Sloping surface which is used for raising or lowering of load. लोड को हायर पॉइंट पे और हायर से लोअर पॉइंट पे लाने के लिए एक स्लोपिंग सरफेस यूज करते हैं. वी कॉल इट inclined plane. Uses: a ramp is used to load or unload goods into a truck. ट्रक के आगे एक स्लोपिंग सरफेस रख देती हैं और ट्रक को लोड करना अनलोड करना इजी हो जाता है. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कैरी पेशेंट्स इन व्हील चेयर्स. पेशेंट्स को अलग अलग फ्लोर्स पे ले जाने के लिए व्हील चेयर्स में रैंप की हेल्प से उनको लेके जाते हैं. थर्ड, इट इज यूज टू टेक स्लाइड्स इन द पार्क्स. पार्क्स में जो आप स्लाइड्स लेते हो वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन है. एंड रोड्स इन द हिली रीजन हैज अ स्लोपिंग सरफेस. इट इज ईजियर टू मूव ऑन अ स्लोपिंग सरफेस देन अ स्टीपर रोड. ओके, अगर रोड बहुत ऊंची सीधी रोड होगी ऊंचाई तक तो उस पे चलना बहुत मुश्किल है. वहाँ पे स्लोपिंग सरफेस की फॉर्म में होती हैं रोड्स. दैट्स व्हाई इट्स इजी टू मूव ऑन दोज रोड्स विच आर इन द हिली रीजन. नाउ व्हाट इज अ लीवर? वेरियस टाइप्स. लीवर इज अ सिंपल मशीन हैविंग रॉड. एक रिजिड रॉड होती है विच कैन बी टर्न्ड अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं फल्क्रम. And it has 3 points, 3 parts. Load, the object to be lifted, उसे हम load कहते हैं. Fulcrum means support or the point around which lever turns. And effort is the force applied, push or pull. 3 types of lever are there. First class, when fulcrum is between load and effort, means fulcrum center में होता है. सेकेंड क्लास, जब लोड सेंटर में होता है बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट. थर्ड क्लास, व्हेन एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम. आपको मैंने फ्ली वर्ड लर्न करने को बोला था. एफ के ऊपर फर्स्ट, एल के ऊपर सेकेंड और ई के ऊपर थर्ड लिखोगे तो ये सब सेंटर पोजिशंस होंगी. तो यू कैन इजीली लर्न द टाइप्स ऑफ लीवर. अब आपको डायग्राम्स भी बनानी है. आप कोई भी डायग्राम्स बना सकते हो. वो आपकी बुक में पेज 107 और 8 पे दी हुई हैं. मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए आप ये वाली भी बना सकते हो. फर्स्ट क्लास के लिए मैंने सीजर्स को लिया है. इसमें फल्क्रम सेंटर में है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट क्लास लीवर. सेकंड मैंने लिया नट क्रैकर, इसमें लोड सेंटर में है. एंड थर्ड टाइप के लिए मैंने लिया आइस टॉन्ग, जिसमें एफर्ट सेकंड सेंटर में है. क्लियर? सो दिस वे यू कैन draw them, you can learn them. That's all about today. Thank you. Have a nice day.